important that you choose the small spread currency pair only. And in this, the long-term trades may be like 1 or 2 pip, may not be like any noticeable difference. But in FX Forex strategy, it can be represents up to 10 to 40% of your capital if you are doing scalping. So another most important component for success in this field is choosing currency with higher volatile also. This is essentially can provide traders with more trading opportunities. As you will choose most higher volatility pairs, you will gain a good profit. And, just a second, I must mute all the participants. Okay, so continuing, you should also choose the broker with no dealing desk. It is very essential that since getting a refusal of opening or closing trades at a wrong time can prove a very devastating for your trading account. When it comes to technical indicators, many popular forex scalping strategies include utilizing moving average, Bollinger Bands, and many more strategies. Even simply using support and resistance to find suitable entry point for your opening positions. So many professional traders may use to execute those types of trade manually also. Since scalping is like every second is very important for them, and they do not want to spend many time on their screening and to set a stop loss or what. Scalping is like you had placed the order now and then the market movement is there and you have closed your order. That's it. Scalping is like this short. Then basically, forex scalping is where a trader attempts to make a numerous small trades to make many small profits, usually around 5 to 20 pips for each trade. It is sufficient for scalpers. Okay. So I hope the screen is visible to all of you. So now next we will see some forex scalping necessity. What it is, what are the necessities of forex scalping? So forex scalping requires a lot of things to be right. If you can't get them all, you won't be able to like completely sure about your strategy that it will work or not for your trade. So scalping is perhaps the most demanding of forex trading strategy, as we all know. So as a scalping, there is no doubt small profits, but it also helps to gain if it is in your favor. That is very important. If market is going in your favor, then only you will see that forex scalping is most benefit for you. So that's why many traders do scalping with the high volatile pairs only and gain a good amount, I guess. So next, we will see. Actually, while trading forex scalping, you should set your right mindset. So for that, scalpers need to able to take a lot of stress also, and at simultaneously, I will say they have to be very disciplined also, and to keep the right mindset to earn profit. As if they will be patient and if they will trade without emotions, then only they can trade properly. Okay, many of the people want this webinar in Hindi, but it is like I had got this webinar for English. No worries, I will repeat a short intro for all you guys who want in Hindi. I will speak in Hindi also in last. No worries. Okay, so continuing in English, I will continue in Hindi after that. Okay. So I was talking about the right mindset. So basically, right mindset is very important for trading in forex scalping, because if you are not used to take stress or you are not disciplined while trading, then I must say the scalping is not for you. You are suited for swing or day trading instead. That take place also.
It is like day trading in that you need to sit in front of your screen for the long period of time, but the difference is you need to be extremely very focused. You need to be very fast while the trade is going on. Scalpers also need to prepare to get out of their bad trades fast too. Because if you are into your bad trades, then you won't be able to focus on your current trades and make a good profit. So you should get out of your bad trades quickly. If they have misinterpreted the direction of the market heading, their trades will start becoming a loss. So they need to be fast and act without emotions, as emotion is not in trading to accept the loss and get out of it. So I must say you should trade without emotion while doing your trades. And in this, patience is also important. If you want consistency in your trading, like you want money consistently flowing in, then you have to keep the right mindset to train, and you have to be like patient while trading and very focused and trade without emotions. So the right mindset is very important. So now coming on the main things, that is, we will talk about the top 5 simple and profitable forex scalping strategy. In this, many of the best forex scalping strategy use indicators to tell traders when to trade, when not to trade. As forex scalpers, you may have used the combinations of strategies mentioned, and many of the traders use n number of indicators in their charts. But ideally, whatever strategy you decide to use, look for the confluence, which is where to get at least two signs. That is like when to buy and when to sell, and when to close your buying or selling positions. So by these two signs, you are most likely to get your results. That said, like finding the confluation is a very subjective and demand on what indicators you are looking. So let's look the 5 simplest and most profitable scalping strategies. Just a second. So in this first one, we have exponential moving average. In this, exponential moving average is the strategy which relies solely on using exponential moving average. That is what it is basically. In short, it is a given name as EMA indicator. EMAs are very easy to use and basically show the underlying trend behind the forex pairs by showcasing the average price over a period of time instead of current market price. It is advised that you use 2 or 3, and this strategy can be used in bullish market as well as in bearish market. In both markets, we can use this strategy. So when the current price is above EMA, it can be seen as signal to sell. And when the price is below EMA, it can be signal to buy. When EMA is above, then you can buy it, and then you can sell it. As you can see in the chart also, I had mentioned in short, by using more than one EMA, we can get accurate when to identify the buy and sell points. You should also set a stop loss before after meeting the points. This is when you prevent the getting stop out earlier. It helps you to get stop out, not to stop out. So basically EMA is used like we know about the moving average also. We can use EMA of 20 to 50 also, and 7 to 21 also. So coming on next, we have volume and price action. So I guess many of my participants wants in Hindi, so I can continue in Hindi, no issues. सो वॉल्यूम और प्राइस में कैसे रहता है ना, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा एक सिग्नल है और प्राइस एक्शन एक हमारा कंफर्मेशन है. वो दो कॉम्बिनेशंस के बगैर हम लोग कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते.
जब हमारा वॉल्यूम कम रहता है और प्राइस एक्शन हमारा ज्यादा रहता है, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए मार्केट में कब वो रिवर्स ट्रेंड ले रहा है। और एक्चुअली कैसा रहता है कि कैसा मार्केट एक ब्रेक भी देता है कि वो वही कंटिन्यू करने वाला है कि वहां से नीचे जा सकता है मार्केट। सो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग प्राइस हिस्ट्री देखें, कैसा पूरा वो चार्ट था। हम लोग प्रीवियस चार्ट में प्रीवियस टाइम पीरियड में देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो प्राइस एक्शन का, एंड वॉल्यूम को साइमल्टेनियसली हमको देखना है। क्योंकि जब हम लोगों का वॉल्यूम का सिग्नल और प्राइस एक्शन का दोनों का मिला के हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, हमको दोनों कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम एक प्रॉपर सिग्नल देख सकते हैं वेदर हम लोगों को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। और हम लोगों को ये टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जब मार्केट एक रेंज में घूमता है तब हम अपने ऑर्डर्स प्लेस ना करें। तो सॉरी तो बेटर है कि जब थोड़ा मार्केट में मूवमेंट है और अच्छा अच्छा खासा मार्केट जा रहा है, एंड अपना हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हुए जो हिस्ट्री था पास्ट का, वो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने काफी टाइम से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री रिपीट होता ही है। अगर हम लोग बात करें काफी टाइम पे, वो सेम पैटर्न्स बना के रिवर्स ट्रेंड देता है हमें, एंड साइमल्टेनियसली वो वॉल्यूम पे भी हम लोग देखेंगे तो वो दोनों मैच करके हम अपना ट्रेड फुलफिल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम दोनों ही हम लोगों को साइमल्टेनियसली देख के चलना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम लोगों को कभी भी ज्यादा ही जब वॉल्यूम हाई रहता है या कुछ मूवमेंट नहीं रहता है, तभी हम लोगों को काफी ज्यादा केयरफुल होके ट्रेड करना चाहिए। So coming on the next, we have stochastic and trend line. Stochastic तो काफी easiest मैं बोलूँगी ट्रेंड आई मीन इंडिकेटर है, एज हर एक नॉर्मल क्या बोलते हैं ट्रेडर ने वो RSI यूज किया रहता है। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर कोई यूज करता है। इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो एंड वेरी इफेक्टिव टू यूज ऑल्सो। लाइक हम लोग RSI का अगर हम लोग देखेंगे तो अगर उसने, जैसे मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया हुआ है कि अगर आप नीचे देखेंगे ओवरसोल्ड राइजन दिया हुआ है 80 एंड 20 पे, ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है RSI में। बेसिकली ये क्या होता है, स्टॉकिस्टिक ऐसा एक इंडिकेटर है जिसमें अगर वो 80 क्रॉस किया रहता है तो हम लोग देखते हैं मार्केट काफी ओवरबॉट में जा रहा है, एंड अगर वो 20 के बिलो है तो हम ये मानते हैं कि वो ओवरसोल्ड किया रहता है। तो जब वो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रहता है तब हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जाने वाला है, ना कि हम लोग बस एक मतलब कैंडल बना दिया और हम लोग ने अपना ट्रेड प्लेस कर लिया। ये दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को काफी अच्छे से देखना चाहिए। और क्या उसका अप ट्रेंड होता है, क्या उसका डाउन ट्रेंड होगा, वो भी काफी अच्छे से। और हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे हमारे पास इंडिकेटर्स है, जैसे हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना के भी अपना कुछ देख सकते हैं कि मार्केट कौन से एक रेंज में अभी तक गया है, कब तक उसने बाइंग का सिग्नल दिया, कब तक हमको सेलिंग का सिग्नल दिया। बिकॉज एक टाइम पे आता है कि वो पूरा रिवर्स हो जाता है और वो पुल बैक जरूर देता है हमको। तो हम लोगों को ये दोनों चीजें भी काफी अच्छे से ध्यान देनी चाहिए कि कब हम लोगों को मार्केट ओवरसोल्ड है तो हम लोग कब एक प्रॉपर टाइम आता है कि हम लोग वहां से ओवरसोल्ड है तो बाय कर सकते हैं, ओवरबॉट है तो वहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी मार्केट ऐसे एक दो कैंडल्स बना के फिर से घूम जाता है। तो स्टोकेस्टिक काफी इजी है। मैं वही चाहूंगी कि आप अपने जो भी MT5 या MT4 जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं एक बार उसमें लगा के देखें, एंड ट्रेंड लाइन भी आप एक बार ड्रॉ करके देखेंगे तो काफी इजी होगा आपको समझने में। So next one we have dynamic and static support and resistance। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सभी को पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट रहता है और एक रेजिस्टेंस ही रहता है जिसपे हम लोग ज्यादातर डिपेंड रहते हैं कि अभी मार्केट कौन सा ट्रेंड लेने वाला है, बाय लेने वाला है या सेल लेने वाला है। सो वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। स्टैटिक सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो कि हम लोगों को काफी बिगिनिंग में देखना चाहिए, हमारे जब हम ट्रेड स्टार्ट करने वाले रहते हैं वो हम लोगों को
बिगनिंग ऑफ अ डे में देखना चाहिए कि क्या उसका हाईएस्ट था, क्या उसका लोवेस्ट था, एंड वो कब स्टार्ट कर सकते हैं हम अपना ट्रेडिंग। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके लिए रहता है। एंड वहीं अगर हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादातर मैं बोलूंगी जब मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है तब वो चेंज होते रहता है। तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसा मार्केट फ्लक्चुएट रहता है, कब मार्केट वॉलेटाइल है तो वो मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड उसके बगैर अगर वो दोनों जब पॉइंट मैच करते हैं, हम डायनामिक एंड स्टैटिक का सपोर्ट मीट देखेंगे, तब हमको अच्छे से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, बाय या सेल। एक्चुअली मेनी ऑफ द क्लाइंट्स हैव मेनी क्वेरीज। मैं आप जैसे ही मेरा वेबिनार खत्म होगा मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जस्ट एक बार मेरा वेबिनार खत्म हो मैं आपको आंसर दे दूंगी। ओके, सो डायनामिक एंड स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई गेस आपको क्लियर हुआ रहेगा कि स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोगों को काफी अर्ली बिगनिंग में देखना चाहिए, एंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा चेंज होते रहता है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनामिक में। एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट का बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो कमिंग ऑन द फिफ्थ वन, वी हैव बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड, अब ये क्या होता है, मतलब इसमें कैसे रहता है ना, मार्केट काफी ज्यादा जब वॉलेटाइल रहता है तभी हम लोग बॉलिंगर बैंड बेसिकली हम लोग तभी यूज करते हैं। ऐसे नहीं है कि अभी मार्केट एक रेंज में है तो हम लोग कोई भी इंडिकेटर्स देखा है, इंडिकेटर्स का भी एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम रहता है। इफ मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो मैं बोलूंगी आप बॉलिंगर बैंड का इंडिकेटर लगा के आप देख सकते हैं। इसमें कैसा रहता है, एक हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट रहता है जो कि आपको बताएगा कि मार्केट कैसे रहता है। इसमें एक अपर बैंड रहता है, लोअर बैंड रहता है, और अपना मूविंग एवरेज जो भी चलते रहता है उसके हिसाब से रहता है। तो इसमें कैसे रहता है, इफ अपर बैंड प्राइस जो है अपना अपर बैंड के ऊपर रह आया है तो वहां से हम मार्केट को समझ सकते हैं ओवरबॉट, एंड वहां से हम अपना जो भी ट्रेड है जहां पे भी आपको लग रहा है वहां से आप सेल कर सकते हैं अपना ट्रेड। एंड वहीं अगर हम देखें कि वो अगर लोअर बैंड पे है तो वहां से वो ओवरसोल्ड हो चुका है तो वहां से हम लोग बाय करेंगे मार्केट को। ओके, जस्ट अ सेकेंड या। तो बॉलिंगर बैंड के बारे में मैं यही बता रही थी कि वो जब मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है और तब हमें वो इंडिकेटर यूज करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली मैं अगर बोलूँ यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों को एक 10 पिप रूल रहता है जो कि 10 पिप्स का डिफरेंस रख के हम लोग अगर ये बॉलिंगर बैंड रखेंगे ना तो हम लोगों का अकाउंट स्टॉप आउट होने से काफी ज्यादा बच सकता है। इफ इन केस कि हम लोगों का अकाउंट थोड़ा लॉस में है और हमको थोड़ा अच्छे से देखना है तो हम ये इंडिकेटर लगा के एक जजमेंट हम लोगों को मिल सकता है कि अभी मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहेगा। तो एक 10 पिप रूल लगा के अगर हम ये इंडिकेटर लगाएंगे तो इट विल हेल्प अस अलॉट टू सस्टेन इन द मार्केट ऑल्सो। तो ये कुछ 5 सिंपल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज थी, जैसे कि ईएमए था, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन था, देन स्टोकेस्टिक ट्रेंड लाइंस था, डायनामिक स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन बॉलिंगर बैंड। ये कुछ 5 सिंपल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपसे अभी तक शेयर की है। देन हम नेक्स्ट आएंगे। ओके, चार्ट इज नॉट विजिबल, जस्ट अ मोमेंट। इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am, it's visible. ओके, सो ये कुछ 5 टाइप्स थे जो मैंने आपको बताए सिंपल वे में। हम नेक्स्ट अभी देखेंगे, एक सेकेंड।
ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोगों को काफी चीजें कैसे रहती है कि सॉरी, हम लोग काफी चीजें कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं एक्चुअली। जैसे कि काफी न्यू ट्रेडर्स रहते हैं या क्या, तो किसी और ने कुछ सजेस्ट कर लिया, किसी और ने कुछ सजेस्ट कर लिया, हम वो सब के सब इंडिकेटर्स अपने चार्ट में लगा देते हैं, जो कि काफी हार्मफुल रह सकता है। एक्चुअली मैं बोलूंगी कि आपको काफी इजी और सिंपल वे में ट्रेडिंग करना चाहिए। जो स्ट्रैटेजीज आपको एक दो काफी अच्छी लग रही है एंड आपने उस पर काम किया हुआ है, तो ही वो आप अप्लाई करें अपने चार्ट पे एंड देन आप उसको एक सिंपल वे में लेके जाएं। बिकॉज आप जितना अपने चार्ट को सिंपल और इजी रखेंगे वो ज्यादा टाइम तक चलेगा और आप उस पे मतलब एक्स्ट्रा जो भी है उस एक या दो इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं आपके एवरी जो भी ट्रेड रहेगा, तो उसके लिए आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। सो एक तो ये चीज है कि काफी इजी रखना चाहिए, हम लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए चीजों को। जैसे काफी सारे हम लोग इंडिकेटर्स लगा देते हैं ये वो या कुछ भी, एक दो स्ट्रैटेजीज जो आपको लगती है वो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा दीजिए एंड वहीं पे स्टिक रहिए। कैसे रहता है, अगर हम लोग काफी चीजें लगाते रहेंगे तो वो एक लॉस भी मान सकते हैं हम कि ये ट्रेंड वो दे रहा है, वो ट्रेंड वो दिखा रहा है, तो चार्ट प्रॉपर हम नहीं देख पाते हैं। सो बेट टेस्टिंग ना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बेट टेस्टिंग क्या रहता है, अगर आपका कोई रियल अकाउंट है देन आपको उसमें ऐसे है कि आप उसमें ज्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं अप्लाई करके काम नहीं कर पा रहे, बट एक बेनिफिट है हमारे पास कि हम लोग डेमो अकाउंट खोल सकते हैं एंड इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो दैट हम लोग अपना डेमो अकाउंट ओपन करके जैसे काफी क्लाइंट्स रहते हैं कि उन लोगों को काफी न्यू न्यू चीजें सीखने का रहता है, तो वो लोग एक डेमो अकाउंट ओपन करके जितनी स्ट्रैटेजीज पे वो लोग बेट टेस्टिंग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं एंड देन जब उनको जो सूटेबल लगा, जो उनके लिए उनको बेनिफिट लगा, वो वही दो या चार जो भी दो या तीन आपको इंडिकेटर्स लगे वही आपके रियल अकाउंट में लगाइए एंड देन आप वहां पे वर्क करिए। इसके लिए बेट टेस्टिंग के लिए मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आपका डेमो अकाउंट है, आप मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं, if आपको नहीं है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मैनेजर को बोल के आप डेमो अकाउंट ओपन करवा के देख सकते हैं। नो वरीज, अगर आप प्रोफेशनल भी है तो आप अगर रियल अकाउंट में मैनेज कर सकते हो तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, बट जो न्यू क्लाइंट्स हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन रहती है मैं उनके लिए यही प्रेफर करूंगी कि वो लोग डेमो अकाउंट खोल के यहाँ पे देखें। सॉरी। ओके, सो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग जो भी है मार्केट एक्सक्यूशन जो रहता है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट रहेगा डेमो और रियल का। मैं बोलना चाहूंगी कि एग्जैक्टली जो आपको डेमो में दिखेगा वही रियल में नहीं रहेगा, थोड़ा बोल सकते हैं कि 19-20 का फर्क रहेगा, ज्यादा नहीं। सो आप डेमो में अच्छे से आपके बेट टेस्टिंग करके फिर आप रियल में मूव होके आप अपनी स्ट्रैटेजीज काम कर सकते हैं और ज्यादा मैं बोलूंगी रिस्क ना लेके एक स्मॉल स्टार्ट करके आप अच्छे से वो स्ट्रैटेजीज पे वर्क भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। सो कमिंग ऑन नेक्स्ट की पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस होल वेबिनार, जो कि मैं इन शॉर्ट में बोलना चाहूंगी, जो फॉरेक्स स्कैल्पिंग है वो काफी स्मॉल ट्रेड्स के लिए ही रहता है और स्मॉल प्रॉफिट्स ही आपको देगा, उसमें हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मॉल प्रॉफिट्स गेन करके आप वहां से निकल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे रहता है कि आपको जो मार्केट स्कैल्पिंग फॉरेक्स स्कैल्पिंग का जो भी नेसेसिटी है, जैसे आपका जो ब्रोकर है वो फास्ट ब्रोकर रहना चाहिए, फास्ट फास्ट प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो राइट रहना चाहिए, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका माइंडसेट है वो अगर एक राइट वे में जाएगा तो आपका ट्रेडिंग भी बट ऑब्वियस है कि सही जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रैटेजीज आप यूज करना चाहते हैं वो एक या दो ही लगाए, ज्यादातर इतना अपने चार्ट को कैसे रहता है क्लियर रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। एंड वही है कि आप सिंपल रखिए एंड स्ट्रैटेजीज पे वर्क करके आपका अच्छे से काम हो सकता है। सो फॉरेक्स स्कैल्पिंग वही बताऊंगी मैं अगेन कि शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, आप छोटे प्रॉफिट लेके काफी लंबे काफी ज्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। सो आई होप आप लोगों को ये वेबिनार समझ आया होगा। ओके, सो अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। काफी सारे क्लाइंट्स के वेबिनार के बीच में क्वेश्चन आंसर्स थे तो मैं उस पे आना चाहूंगी।
किसी क्लाइंट ने बोला सजेस्ट अबाउट द टाइम फ्रेम्स आल्सो। सो सर आई हैड डन मैंने एक्चुअली इससे पहले एक वेबिनार किया था बेस्ट टाइम फ्रेम्स पे ही, एंड वो YouTube पे शायद अपलोड हो भी चुका है, या मार्केट्स करके आप सर्च करेंगे ना YouTube पे, तो आपको बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है मेरे लास्ट वेबिनार में, तो आप वहां से कर सकते हैं। एंड आपको इफ इन केस उसके बाद भी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे लाइव चैट में जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज है, डाउट्स है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन वी हैव, जैसे मैंने मेंशन किया पहले ही कि डेमो और रियल अकाउंट में मतलब वर्क होता है, बट थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बट हाँ, जो आपके स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करने के लिए है तो वो आप डेमो में पहले यूज करके फिर रियल में आएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैल्पिंग के लिए कितना टाइम पीरियड रहना चाहिए। मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स चार्ट इज वेरी सुटेबल फॉर फॉरेक्स स्कैल्पिंग। उसके अलावा आप ज्यादा अगर लंबा ट्रेड ले रहे हैं तो ही आप आगे जाइए, वरना 15 मिनट्स इज लास्ट चार्ट यू शुड सी एंड डू योर ट्रेड्स। My next webinar will be very soon and it will be uploaded in our Ya Markets website also. Okay, can you explain Bollinger Band once again? Sure, just a moment. Bollinger Band एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हम लोगों का जो मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है ना, हम तभी ही बॉलिंगर बैंड यूज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल मार्केट एक जब रेंज में चलता है तब आपको बॉलिंगर बैंड का कुछ डिफरेंस ही नहीं समझ आएगा। जब मार्केट का वॉलेटिलिटी रहता है तब अगर हम लोग बॉलिंगर बैंड यूज करेंगे ना तो ज्यादा हम लोगों को यूजफुल रहता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको फिर से वो चार्ट भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बॉलिंगर बैंड का वॉलेटिलिटी का चार्ट रखा हुआ है आपके आगे। उसमें कैसा रहता है, जब हम लोगों का जैसे यहाँ पे अपर बैंड, मूविंग एवरेज डेज, लोअर बैंड, ओवरसोल्ड भी है, तो काफी चीजें इजी रहती है। जैसे ये अपर बैंड है, मूविंग एवरेज है, लोअर बैंड है, तो इसमें कैसा रहता है ना, जब मार्केट अपर बैंड को टच कर लिया, हम लोग ने अगर ये इंडिकेटर लगा के देखा तो अपर बैंड पे अगर वो टच हो गया और वो ओवरबॉट हो चुका है, अब वहां से हम मार्केट को अपना जो भी हमारा ट्रेड रहेगा वहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। एंड जब हमारा मार्केट लोअर बैंड मतलब कि ओवरसोल्ड हो चुका है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है आपको कि वो कौन सा एक राइट पॉइंट है। जब आपको वहां से, जब ओवरसोल्ड हो गया ना, वहां से आपको एक राइट पॉइंट देखना है, कब आपको वो चांस मिल रहा है बाय करने का, तब आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो सिंपली ये ऐसे है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, हम लोगों को वो एक चीज आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से आप अपना बाय एंड सेल का पोजीशन रख सकते हैं। एंड इसमें हम लोग अगर एक क्या बोलते हैं, मतलब 10 पिप का रूल रखें, जो कि रहता है अगर मार्केट यहाँ है तो हम लोग 10 पिप्स का अगर हम लोग डिफरेंस रखेंगे उसमें, तो वो थोड़ा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। जैसे आपका अकाउंट जो है वो स्टेबल रहेगा, सस्टेन करके रहेगा। तो बॉलिंगर बैंड दैट्स इट, वही है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में यूज होता है एंड एक प्रॉपर टाइमिंग उसका हाईएस्ट लोवेस्ट हम लोगों को देखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बॉलिंगर बैंड का क्लियर हो गया।
इंडिकेटर्स का वही मैं आपको बताऊंगी कि एक बार आप एक अपना डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिए या मार्केट से, एंड देन आप उस पर प्रॉपर जितने भी मैंने आज इंडिकेटर्स बताए एक एक करके अगर आप उस पर स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे कौन सा वे में जा रहा है। उसके लिए आपको भी एक बार थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हर इंडिकेटर लगा के। Okay, so next question we have, what are the benefits trading with YA markets? Okay, so in this I will answer like आप हमारे live chat पे जाइए and registration कीजिए, उसके बाद एक प्रॉपर पर्सन को आपका डिटेल या जो भी नंबर है वो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे एंड वो आपको पूरे बेनिफिट्स क्या है कैसे है सब बताएंगे ना। आप वहां से फिर आपको अगर पूरा प्रॉपर समझ आ रहा हो तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एल्स आप यहाँ पे भी अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। एक सेकेंड। जैसे कि एक और क्वेश्चन है कि अपर ब्रेन पे टच होके भी मार्केट बुल रन में ही रहता है बट हम सेल लेके बैठे थे, ऐसे कब रहता है सर? मैंने तभी आपको बताया जो बॉलिंगर बैंड हमारा इंडिकेटर है वो जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहता है तब रहता है। एंड अगर आप जैसे बोल रहे हैं ना वो कुछ मूवमेंट के लिए रहेगा, एक दो कैंडल्स बना के फॉर श्योर उसने एक रिवर्स ट्रेंड बनाया ही होगा जो कि सेल में रहेगा, नो डाउट। वो एक ओवरबॉट में गया और उसके बाद जो आपने लगाया था सेल आपका, बट वो एक रिवर्स गेयर आपको जरूर देगा ओवरबॉट होने के बाद, बिकॉज वो ओवरबॉट हो के भी कितना जाएगा, उसने 80 क्रॉस कर लिया उसके बाद उसका कोई चांस ही नहीं है वो और ज्यादा ऊपर जाए। तो वो एक जरूर आपको रिवर्स देगा, तो आपको उस वही पर्टिकुलर टाइम का वेट करना है कि वो कब हो रहा है। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल का भी मैं वही बोलूंगी कि आपका कैसे रहता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो डिपॉजिट एंड विड्रॉवल का हमारे पास काफी ज्यादा पेमेंट गेटवेज है, जैसे कि आप बैंक वायर से कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, एंड एन नंबर ऑफ लाइक मेनी पीपल यूज लाइक गूगल पे, फोन पे, एंड हमारे पास हर टाइप का है। आप एक बार कंसल्ट करिए आपके अकाउंट मैनेजमेंट को एंड वो आपको प्रॉपर सजेशन देंगे कि कैसा है डिपॉजिट विड्रॉवल। MT4 में अवेलेबल है क्या आपका डिपॉजिट ऑप्शन गूगल पे? क्या बोल रहे हो सर, रिपीट कर सकते हो? MT4 में डिपॉजिट यूपीआई आईडी से ऑप्शन है क्या? सर हमारे यहाँ पे एक क्विक पे सिस्टम है, वो आपको दिया जाएगा, वहां से आप स्कैन करके भी डाल सकते हैं MT4 के लिए। आपका कोई अकाउंट मैनेजर है? हाँ अकाउंट मैनेजर है आपका कोई? हाँ है ना। हाँ, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट करेंगे ना तो वो MT4 में एक स्कैनर है हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब डॉलर में जनरेट होता है तुरंत? क्या बोल रहे हो सर? मतलब पहला ऑप्शन था ना आपका MT4 में डायरेक्ट अटैच डॉलर में दे रहा था वो। सर वो थोड़े टाइम में ही अपडेट हो जाएगा, फिर वो जो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं वो वैसे हो जाएगा। अच्छा कब तक मतलब कम से कम? अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ दिस वीक। वीक ओके हाँ जी। ओके थैंक यू। या वेलकम। Ma'am, actually, I have a question on EMA.
या टेल मी। एक्चुअली मैम जब हम कोई भी ईएमए यूज कर रहे हैं तो आई थिंक ये सारे इंडिकेटर्स या जो भी ईएमए है ये शायद लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। जो भी हमें बताया गया है कि जब भी कोई दो ईएमए या ईएमए एंड एसएमए क्रॉसओवर हो रहा है तो हम अगर डाउन में तो हम सेल ले सकते हैं, बाय ले सकते हैं, लेकिन जब तक वो क्रॉसओवर होता है तब तक तो मार्केट काफी ऊपर जा चुका होता है, देन उधर से ज्यादा पिप्स का प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो कोई ऐसा ईएमए या कोई ऐसी मूविंग एवरेज जो परफेक्टली काम करे। सर जैसे स्कैल्पिंग का मैं बता रही थी, तो स्कैल्पिंग के लिए 5-10 पिप्स काफी ज्यादा ही हो गए, तो 5-10 पिप्स में ही हम लोग कैसे रहता है वो एंड हो जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। स्कैल्पिंग बेसिकली उतने पिप्स का ही रहेगा। तो मैम एक्चुअली आप सजेस्ट कर सकती हैं बेस्ट ईएमए फॉर स्कैल्पिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एक बार जस्ट आप गो थ्रू हो सकते हैं 15 मिनट्स के से, बट 5 मिनट्स विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू फॉर स्कैल्पिंग। मैम अभी मैं थोड़ा सा कुछ ईएमए और एसएमए यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था आप कोई ईएमए सजेस्ट कर सकते हैं क्या? आप वैसे कैसे कौन सा यूज करें बता सकते हैं सर? एक्चुअली मैं 9 ईएमए and 20 ईएमए 50 एसएमए एंड 200 एसएमए। ओके सो सर बेसिकली इसमें कैसे रहता है ना, एक 7 का रहता है, एक 21 का रहता है। जो अगर हम लोगों को प्रॉपर चलना है ना तो 7-21 का ले सकते हैं हम, या 20-50 का ले सकते हैं। कैसे ये जो कंपैरिजन ऑफ पेयर्स रहते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप एक बार 7 और 21 का लगा के देखें एंड 20 और 50 का लगा के देखें, तो मे भी आपको थोड़ा क्लियर विजन मिलेगा। 2050 तो मैं यूज कर रहा हूँ, आपकी का आपने जो बोला है मैं उसे यूज करके देखूंगा। 7 एंड 21। जी 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 सर। ओके थैंक यू मैम। या वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज योर कमीशन? एक्चुअली कोई कमीशन नहीं है यहाँ पे। ये टोटली कमीशन नहीं है इस पे। एक सेकेंड। इस पे कैसा है ना, स्प्रेड रहता है, कमीशन नहीं रहता है, तो इस पे कोई कमीशन चार्ज नहीं होगा आपको, स्प्रेड पे रहता है जो भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जस्ट अ मोमेंट। स्प्रेड यूरो में किसी ने पूछा हुआ है सर, वो अकाउंट टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, उस हिसाब से स्प्रेड लगता है। जैसे बेसिकली एक हम लोग आइडिया दे सकते हैं कि 1.8 का भी स्प्रेड रहता है, बट वो पूरा आपके अकाउंट टाइप पे डिपेंड रहता है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया। जैसे हमारे 4 टाइप्स के अकाउंट है, तो एक बार आप वो चेक कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एंड आप एक सेकेंड। Sir, डिपॉजिट विड्रॉवल में जस्ट मैं बोलूंगी कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। काफी इंस्टेंट ही होता है, बट हाँ कभी कुछ सिस्टम में एरर रहता है तो 10 मिनट्स के लिए डिपॉजिट हम बोल सकते हैं। एंड विड्रॉवल के लिए मैक्सिमम हम बोलते हैं 24 आवर्स, बट वो 2 आवर्स के अंदर अंदर ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड कभी कभी तो इट इज वेरी बेनिफिट दैट हाफ एन आवर में भी हम लोग अपना विड्रॉवल ले सकते हैं। एज आई हैड मेंशन्ड, विड्रॉवल का टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर्स हम लोग बोलते हैं, बट वो 2 आवर्स या हाफ एन आवर में हो जाता है। थोड़ा कभी सिस्टम इशू हुआ या क्या तो टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। एंड आप हाँ
कर सकते हैं, हावला से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, हवाला। ओके, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है $100, जो कि हम लोग इंडियन रुपीस में देखें जो कि है 7,500। वहां से आप डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ईसीएन में कितना स्प्रेड है सर? ईसीएन में मैं यही बोलूंगी कि काफी ड्रॉ स्प्रेड लगता है आपको, एंड इसमें हम लोगों का $5 कमीशन है जो चार्ज होता है। बाकी ईसीएन में इतना स्प्रेड नहीं है कोई। ओके, जस्ट ओके। सो हवाला प्रोसेस के बारे में किसी ने पूछा है। इसमें कैसे रहता है ना, अगर आपका अकाउंट मैनेजर है तो वो आपको बताएगा, नहीं भी तो इन शॉर्ट मैं बताती हूँ आपको कि हावला एक काइंड ऑफ एक्सचेंजर रहता है जो कि हम आप लोगों के लिए हम लोग आपके लिए एक एक्सचेंजर रखते हैं। जैसे आप लोगों का काफी कैश में डिपॉजिट रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो हम लोग एक जगह से लेके वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में करवा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से हाउ कैन आई गेट आईबी कमीशन इन ईसीएन अकाउंट। बेसिकली सर ईसीएन अकाउंट में आईबी कमीशन नहीं होता है, क्योंकि ईसीएन अकाउंट जो भी है रॉ स्प्रेड अकाउंट होता है। रॉ स्प्रेड इन द सेंस कि 0.02 मतलब 0.0 स्प्रेड काउंट होता है, एंड $5 जो चार्ज होता है कमीशन वो कंपनी की रहती है सर। तो इसमें आपको ईसीएन अकाउंट में आईबी कमीशन नहीं मिलता। बाकी 4 टाइप्स का अकाउंट है, लाइक स्टैंडर्ड, अल्टीमेट या रॉयल अकाउंट, प्रो ईसीएन अकाउंट। आप उसमें कमीशन मिलता है, बट ईसीएन अकाउंट में कमीशन आईबी कमीशन नहीं मिलता सर। एंड लाइक यहाँ पे पूछा गया कि एंड यहाँ पे हवाला प्रोसेस पूछा गया कि हवाला प्रोसेस डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है। बेसिकली सर क्या होता है, हवाला इसको नहीं बोलते, यहाँ पे एक्सचेंजर या डिपॉजिट होता है। जो भी एक्सचेंजर हमारे होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ पे एक्सचेंजर पे थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता है सर। तो बेसिकली आपको कोई क्लाइंट को डिपॉजिट करना है, कैश में डिपॉजिट करना रहेगा तो ब्रांच विजिट कर सकते हैं कितने क्लाइंट्स, या किनको कैश में करना रहेगा तो डायरेक्ट आप अकाउंट में से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर अपने कैश में डिपॉजिट करना है, क्या डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रोसेस के बारे में काइंडली आपको कॉन्टेक्ट मैनेजर से अकाउंट टच रहेंगे तो बेटर रहेगा सर। वहाँ पे सारे प्रोसेस बताएंगे सर, कैसे किस मेथड से आपको डिपॉजिट या विड्रॉल हो जाएगा सर वहाँ पर। हाउ टू बिकम एन आईवी। इसमें आईवी आप बन सकते हैं डायरेक्टली आपके सीआरएम में अकाउंट से ओपन करते हैं। आप डायरेक्टली नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन रहेगा लाइक डैशबोर्ड, उसके नीचे बिकम एन आईवी मैनेजर रहेगा। आईवी मैनेजर का प्रोसेस वेरीफाई करते हैं
तो आईवी बन जाते हैं वहाँ पे। एंड आईवी विड्रॉल भी कर सकते हो, लाइक अगर आप 3 क्लाइंट रेफर करते हैं वहाँ पे, तो देन आप आईवी कमीशन विड्रॉल कर सकते हैं मैम। जैसे सीतारमन ने पूछा है हाउ टू बिकम एन आईवी, तो आप डायरेक्टली सीआरएम में लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके बिकम एन आईवी का एक ऑप्शन है वहाँ पे। तो बिकम एन आईवी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका बिकम एन आईवी मैनेजर बन जाता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है, तो उसी लिंक से आपको जो भी क्लाइंट रेफरेंस क्लाइंट रहेंगे वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करना रहता है। And Mr. Gajal Prakash, please provide demo account with what is to 1000 average, default what is to 500, but I want to what is. So, sir, you can contact your account manager for that, for the like leverage changes and all the things. So you can contact your account manager, sir. And Joseph Fernandez, like send me link for IV. Just you can log in on website, sir, with your mail ID and password. And there is a IV link. Just there वहाँ पे एक option रहेगा आपको become an IV का, तो वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं सर। सीताराम का ऑप्शन है when I can withdraw my brokerage from the IV accounts. You can withdraw any time. There is no time limit. You can withdraw if you want. Like आपके अकाउंट में withdraw IV कमीशन जनरेट हो गया तो कभी withdraw कर सकते हो। There is no time limit. There is no bond limit. तो you can withdraw any time. Joseph Fernandez to everyone not opens. I will try 2 times. For that, so you can contact your account manager for the like account opening and the like IB account opening. Please contact your sir, account manager. He will guide you sir how to open an IB account, sir. To said no account managers. Why you are providing this in IB? Fernandez sir, you have no account manager. So right now, so you can share your account number, contact number. We'll call you, sir. Seetharam also please share your account details, contact details. So we can call you and give you the audit details account like account types and display details, all the things. So please share your number. Okay, I got your number, ma'am. Someone will call you within half an hour for the account details and all the details, ma'am.